Assalamu alaikum viewers, my name is Mohammad Yasir Kyani, assistant professor of chemistry और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल यासर कैनी एवरीथिंग। टुडे आवर टॉपिक इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक है, हाउ इट ऑपरेट्स। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन 1920 द आइडिया वाज गिवन बाय लैटिमर एंड रॉडबुश। They introduced the idea of hydrogen bonding. Hydrogen bonding basically is a weak force of attraction present between the hydrogen atom of one molecule and most electronegative atom such as fluorine, oxygen and nitrogen of the neighboring molecule. That's called hydrogen bonding. To explain the nature of association of the liquid state of the substance like water, hydrogen fluoride, ammonia and formic acid. So these are the compounds which contains hydrogen atom as well as the most electronegative atom in them. There are three atoms which must be present for the hydrogen bonding. Later on we are going to discuss it. So next हमारे पास इसकी definition आती है। तो it is an electrostatic force of attraction because it is a polar force that is due to the polarity or polarization between the hydrogen atom and the most electronegative atom. अब इसकी वजूहात को जानिए, इसके आइडिया को जानिए कि हाइड्रोजन एटम के अंदर देर आर नो वैलेंस शेल्स, उसके अंदर कोई इनर शेल्स नहीं है, फर्दर एक ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और उसका न्यूक्लियस ज़्यादा एक्सपोज होता है, पॉजिटिव चार्ज मोर कंडेंस्ड होता है। दैट पॉजिटिव चार्ज applies a stronger force on electronegative atom having electron pair, having lone pairs such as oxygen, such as nitrogen and such as fluorine. These atoms, first of all, they have a dispersed electronic cloud. इस dispersed electronic cloud को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब इन तीन एटमों को ही क्यों अट्रैक्ट करता है? बिकॉज इन तीन के दरमियान सबसे ज्यादा फोर्स होती है, ठीक है। आगे हम इसके बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे, वी विल गोना डिस्कस दैट कि व्हाट आर द मोर फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल and what are the effects of hydrogen bonding on the physical properties. So again, I repeat the definition: the electrostatic attractive force between the covalent bonded H atom of one molecule and an electronegative atom such as fluorine, oxygen and nitrogen of other molecules is called hydrogen bonding. Usually hydrogen bond is represented by dotted lines, it is represented by dotted lines, whereas the covalent bond is represented by solid line. So look at between hydrogen bonding between fluorine and hydrogen. First of all, the fluorine and hydrogen, yeah, hydrogen fluoride molecule will get polarized due to hydrogen bonding. This polarization causes the polarity. Now the positively charged hydrogen and the partial negatively charged fluorine of the other molecule, they will interact electrostatically and this dotted line represents the hydrogen bonding. Next is the hydrogen bond is weak as compared to a covalent bond. It is a weak force of attraction, but the number of hydrogen bonds can affect on the physical properties of the molecule. Hydrogen bond energy is only 2 to 10 kilocalories per mole as compared to the covalent bond energy which is 50 to 100 kilocalories per mole, but it is greater than that of van der Waals attraction. So hydrogen bonding is greater than that of van der Waals attraction, but that is weaker than that of a covalent bond, ठीक है। Hydrogen atom should be linked to these are the conditions for the hydrogen bonding. Mind it, these are the conditions for hydrogen bonding when the hydrogen bond will operate between two atoms. Hydrogen atom should be linked to a highly electronegative atom such as fluorine, oxygen and nitrogen. This is the first condition. If there is another atom other than these three atoms, for example if there is chlorine, then the bond will be called as, then the electrostatic force will be called as dipole force. That will not be a hydrogen bonding, okay. So fluorine, oxygen and nitrogen, they're gonna create hydrogen bonding. So first of all there must be these one out of these three atoms and hydrogen atom must be directly linked to these atoms. Second condition is the size of electronegative atom should be small. The electronegative atom should be size of electronegative atom should be not too much large, it should be small. Now there are two types of hydrogen bonding: intermolecular hydrogen bonding and intramolecular hydrogen bonding.
Okay, when the hydrogen bonding takes place between two different atoms in hydrogen and electronegative atom of two different types, then it will be called as intermolecular hydrogen bonding. Okay, and when it will be within the same molecule, then it will be called as intramolecular hydrogen bonding. Now, what is the intermolecular hydrogen bonding? Look at this type of bonding is between two or more same or different molecules when combined together to form a dimer. Dimer means a polymer. When two similar type of molecule, दो एक जैसे molecule हो, ठीक है, and if the hydrogen bond is present between them and they're going to join to form a polymer, that is called as a dimer. The phenomenon is called as association, okay, and that is called as intermolecular hydrogen bonding. This type of bonding is between two or more same or different molecules. When combined together, then these molecules are going to combine with one another. Okay. Next is, look at that, the hydrogen bonding in ammonia. Now look at the electron pair of the ammonia. Nitrogen has an electron pair, and there are 3 hydrogen atoms are bonded with it. Now hydrogen being partial positive charge. How this partial positive charge is created on the hydrogen? Because the electronegative atom attracts more or pulls the bond pair of covalent bond with the more force, so that this electron pair between nitrogen and hydrogen, that is more towards the nitrogen, less towards the hydrogen. यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो ज्यादा फोर्स से हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ दिस इज द शेयर्ड पेयर इन द कोवेलेंट बॉन्ड. देयर आर 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स इन अमोनिया. नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन होते हैं, तीनों कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं. अब नाइट्रोजन की ये जो बॉन्ड पेयर है कोवेलेंट बॉन्ड में जो यूज हुआ है, nitrogen has a greater ability to attract it as compared to hydrogen. That's why nitrogen become partial negative charge and hydrogen become partial positive charge. This partial positive charge of hydrogen attracts the lone pair of another molecule of nitrogen of the another molecule of ammonia. दूसरा जो molecule है neighboring molecule है, उसके अंदर जो lone pair है उसके साथ ये हाइड्रोजन जो है attractive force बना रहा है, ठीक है. इस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो रहा है, ठीक है. अब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, डेफिनेटली जो लोन पेयर है, ठीक है, विच आर नॉट यूज इन बॉन्डिंग, उतना ज्यादा इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक्सप्रेस होगा. नाउ दिस इज डायमर फॉर्मेशन. एज वी हैव लर्न अबाउट इन द स्टार्ट कि हाइड्रोजन बॉन्डेड एसिड डायमर है. अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हैं. लुक एट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग is creating a molecular pair, and these 2 molecules they are making a dimer, a structure formed by the hydrogen bonding, formed due to hydrogen bonding between the same molecules, and they are making 2 molecules combination. And this is p-nitrophenol with intermolecular hydrogen bonding. This is called as intermolecular hydrogen bonding. Similarly, hydrogen bonding between हाइड्रोजन फ्लोराइड. देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड में एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है. फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ 4. सो फ्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर. बट नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी मैंने आपको बताया, खाली एक फैक्टर नहीं होता कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ की है. हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड. फिर डिटरमिन करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने हैं, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर देयर. जैसे रस्सी के अंदर एक धागा होता है, ठीक है, वो इंडिविजुअली बड़ा वीक होता है, लेकिन जब उनको ट्विस्ट करके पूरी आप रोप बना देते हैं तो फिर वो मजबूत हो जाती है. सिमिलरली हाइड्रोजन बॉन्ड इटसेल्फ इज अ वीक बॉन्ड, लेकिन अ क्लस्टर ऑफ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो फिर आप देखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट और फिजिकल प्रॉपर्टीज में और फर्क आ गया. जैसे वाटर जो है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है बिकॉज वाटर इज हैविंग 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल. वाटर के अंदर पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं.
इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा अफेक्ट होती हैं एज कम्पेयर टू HF। ओके, intermolecular hydrogen bonding increases the boiling point of the compound and also its solubility in water। okay, तो intermolecular hydrogen bond they affect on the physical properties such as boiling points and solubility। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल चीनी है या सुक्रोज है, why sucrose is soluble in water as well as in organic solvents such as petrol, such as alcohol, such as ether। so on if we discuss कि non polar solvents के अंदर वो क्यों dissolve हो रही है सुक्रोज, because of the nature like dissolves like। but अगर हम बात करें कि सुक्रोज why it is soluble in water, अब क्या जवाब हमारे पास, because water is a polar substance and sucrose is a non-polar substance। तो यहाँ पे why sucrose is soluble on the basis of hydrogen bonding, that is effect of hydrogen bonding on the solubility। okay, next please, intramolecular hydrogen bonding, this type of hydrogen bonding occurs within two atoms of the same molecule। अब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब दो एटमों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रा। याद रखिए इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स वो विद इन द सेम मॉलिक्यूल होगी। इंटर दो एक जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकती है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकती है। सो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन अकर बिटवीन टू सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड टू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, बट इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए शर्त ये है, इसके लिए कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मस्ट अकर विद इन द सेम मॉलिक्यूल बिटवीन टू एटम्स। उनमें एक एटम हाइड्रोजन होगा डेफिनेटली और दूसरा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, और दिस इज कॉल्ड एज किलेशन। इसे हम क्या कहते हैं, किलेशन कहते हैं। दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी अकर्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड results in cyclization 6 or 5 members ring of the molecules। okay, now this is, look at this is the chelate formation। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग between now this nitro group is the part of same molecule, this is orthonitrophenol and the hydroxyl group contains hydrogen। now hydrogen of the same molecule is interacting, is making hydrogen bond with the oxygen present within the same molecule। ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल या नेबरिंग मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि इसके अपने किसी और इंटीग्रल पार्ट के साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बस वो उसके नियर बाय है। ठीक है, ये विसिनिटी में है, क्लोज विसिनिटी में है, मींस इट इज इन द क्लोजर अप्रोच। सिमिलरली हाइड्रोजन बॉन्ड इन सैलिसाइल्डिहाइड, ठीक है, यहाँ पर देखें एल्डिहाइड ग्रुप के ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग and this happens mostly in the organic compound, in the ring organic compound। ठीक है, इनके अंदर बेसिकली लोकेशन जो होती है बॉन्ड की वो ऐसे होती है। This type of bonding decreases the boiling point of the compound and also its solubility in water। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल की अपने अंदर होती है तो इसका रिवर्स इफेक्ट होता है कि मॉलिक्यूल के अपने अंदर बॉन्डिंग जब स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा और फिर कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर वो भी डिक्रीज होगी। लार्ज एसिडिटी ड्यू टू द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच इज कैपेबल ऑफ स्टेबलाइजिंग द सैलिसिलेट आयन। ठीक है, ये सैलिसिलिक एसिड यूज होता है अमूमन पेनकिलर मेडिसिन के अंदर, उसकी एप्लीकेशन ये है। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन दैट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगी। ठीक है, ये ज्यादा अफेक्ट करेगी फिजिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, एज कंपेयर टू इंट्रा, इंट्रा विद इन अ मॉलिक्यूल होगी, इंटर बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, अब नाउ वी एंटर इन द अनदर पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब एप्लीकेशंस यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कहाँ यूजेस आते हैं, किस जगह पे हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिजल्टिंग इन द एसोसिएशन ऑफ molecule raises melting point and boiling point and
डिक्रीज इन द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपने अभी पढ़ा कि इंट्रामॉलिक्यूलर की वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट कॉजेज इंक्रीज इन द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लुक एट दैट वाटर और हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, वाटर हैज ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अमोनिया हैज ग्रेटर boiling point than that of phosphine because of hydrogen bonding. Alcohols they have greater boiling point than the thiols, RSH, ये इनके वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट थायोल से ज्यादा होता है, RSH, अल्काइल सल्फर एंड हाइड्रोजन। सिमिलरली अल्कोहल दे हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ ईथर्स, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दो अल्काइल ग्रुप हैं, वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, तो हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। देखें इसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, लिहाजा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। सो अल्कोहल्स दे हैव मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड देन दैट ऑफ कीटोन्स। ये आप आगे सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, compounds whose molecule can form hydrogen bonds with water molecules are soluble in water, as I have told you about the example of sucrose. Intermolecular hydrogen bonding increases and increase the solubility of compound in water. पानी में हल होने की सलाहियत बढ़ जाती है अगर किसी कंपाउंड के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, या वो सब्सटेंस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता हो। दिस कॉजेज द इंक्रीज, एज आई हैव टोल्ड यू कि सुक्रोज जो है या चीनी जो है दैट इज सॉल्युबल इन पेट्रोल एज वेल एज इन वाटर। अब पेट्रोल पानी में हल नहीं होता, लेकिन चीनी पेट्रोल में भी हल हो जाती है, पानी में भी हल हो जाती है। पेट्रोल में हल होने की वजह यह है कि पेट्रोल या ऑक्टेन जो है बेसिकली ये या गैसोलीन जो है दैट इज बेसिकली नॉन पोलर सब्सटेंस, whereas सुक्रोज इज आल्सो नॉन पोलर सब्सटेंस। तो वो लाइट डिसॉल्व लाइक के सोल से डिसॉल्व होता है, लेकिन पानी के अंदर आने की वजह इज ओनली द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सॉल्युबिलिटी ऑफ ओ नाइट्रोफिनोल, ये खैर इंट्रामॉलिक्यूलर की है, ठीक है जी। स्पेशल प्रॉपर्टी, नाउ hydrogen bonding shifts the position of bands, peaks in the ultraviolet, infrared and NMR spectra। ये कुछ स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल की जो उसकी जो पोजीशंस हैं वो चेंज कर देता है, ठीक है, स्टीरियो केमिकल इफेक्ट डालता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स एंड डाइज, देखिए ये जो पेंट और डाइज हैं दे हैव अ कैपेबिलिटी, हम किस लिए यूज करते हैं पेंट और डाई को, किसी सरफेस को कवर करने के लिए। डाई जो होती है बेसिकली किसी फैब्रिक के ऊपर कलर लगाने के लिए होती है। अब डाई और फैब्रिक के मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वो रंग उस कपड़े या फाइबर के ऊपर पक्का होगा, चढ़ेगा पक्का, ठीक है। अगर वो डाई के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है, तो वो डाई उसको जो है ना वो क्लैंप नहीं करेगी या उसके साथ वो बाइंड नहीं करेगी, ठीक है। सो डाइज आर द कलर्ड मॉलिक्यूल्स व्हिच आर यूज्ड टू कलर द फैब्रिक एंड टेक्सटाइल मटेरियल, ठीक है। एंड देन नासिर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन क्लॉथिंग मटेरियल, इट मेक्स them rigid and creates tensile strength. So in paints, paint का काम होता है किसी surface के साथ stick होना, to cling with the surface, to bind with the surface. So paints they have an ability to bind with the surface. That's why the paints are used. Similarly, cleaning action of soaps and detergents. देखिए ये जो soaps होते हैं या detergents होते हैं बुनियादी तौर पर ये क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड एज सर्फेक्टेंट्स, दे आर कॉल्ड एज सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट का मतलब ये होता है कि ये वाटर की सरफेस टेंशन को कम करते हैं। अब वाटर की सरफेस टेंशन क्या होती है, तो वाटर की जो सरफेस होती है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर की सरफेस
बिल्कुल एक खिंची हुई मेम्ब्रेन की तरह हो जाती है। वाटर सरफेस बिकम जस्ट लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो वाटर के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से वाटर की सरफेस जो है वो स्ट्रेच्ड होती है, ठीक है, और वाटर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और इसी वजह से इंसेक्ट दे कैन लैंड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। जो इंसेक्ट्स होते हैं, मक्खी मच्छर वगैरह, ये पानी की सरफेस के ऊपर बैठे हुए होते हैं, एंड दे डू नॉट ड्राउन एंड दे डू नॉट सिंक इनटू द वाटर, दे जस्ट कीप देमसेल्फ फ्लोटिंग ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन। सर्फ या डिटर्जेंट क्या करता है, ये पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कमजोर कर देता है, ठीक है। अब पानी के मॉलिक्यूलों में जब आपस में अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाती है, देन पानी के मॉलिक्यूल जो डस्ट या डर्ट पार्टिकल्स होते हैं कपड़े के अंदर, उन डस्ट या डर्ट पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। इस तरह जब डस्ट और डर्ट पार्टिकल्स को पानी के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं तो इट लीव्स द सरफेस ऑफ द क्लॉथ। तो ये होता ये है कि सर्फ जब हम पानी में डालते हैं, फिर उसमें गंदा कपड़ा डालते हैं, कोई डर्टी क्लॉथ डालते हैं, तो कपड़ा साफ हो जाता है, पानी गंदा हो जाता है, बिकॉज कपड़े से डस्ट और डर्ट को वाटर मॉलिक्यूल पुल कर लेते हैं। पहले क्यों नहीं पुल किया उन्होंने, क्योंकि पहले वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो सर्फ ने सरफेस टेंशन डिक्रीज कर दी, इसीलिए उसका नाम सर्फ है। सर्फ दरअसल सर्फेक्टेंट को कहते हैं। सर्फेक्टेंट हर वो चीज होती है जो सरफेस टेंशन को कम करती है। तो आपने देखा होगा कि जब आप पानी में साबुन या सर्फ मिलाते हैं तो फिर उसमें इंसेक्ट्स नहीं बैठ सकते, मक्खी मच्छर उसमें बैठता है, वो मर जाता है, डूब के वहां पर मर जाता है, बिकॉज सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स यही है कि ये बेसिकली क्या करते हैं, दे डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर एंड वाटर परफॉर्म्स द क्लींजिंग एक्शन। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मसलन ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, दे मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर एंड दैट मेक्स देम सोलुबल। यही वजह है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म के अंदर हमारे अंदर जो प्लाज्मा फ्लूइड्स हैं, ठीक है, और हमारे अंदर जो भी बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके अंदर ग्लूकोज, और हमारे सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज डिजॉल्व हो जाता है, बिकॉज अवर साइटोप्लाज्म कंटेन मोर देन 70 और 80% ऑफ वाटर। तो वो उस वाटर की वजह से ग्लूकोज उसमें डिजॉल्व हो जाता है, और वो डिसोल्यूशन की वजह सिर्फ एक ही है, ग्लूकोज इज अ नॉन पोलर सब्सटेंस, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबल होता है। सिमिलरली इनके जो स्ट्रक्चर है वो आपस में बनते हैं, जैसे सेलुलोज है, ठीक है, डिफरेंट, इनके अंदर भी ये इंट्रैक्शंस काम आती हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनते हैं। प्रोटीन की पैकिंग होती है बाकायदा। प्रोटीन में पहले सिंपल अमाइनो एसिड जब आपस में ज्वाइन करते हैं और दे मेक अ पेप्टाइड चेन, दे मेक अ पॉलीपेप्टाइड चेन, तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन फिर स्पाइरल होती है, दैट मेक्स अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन कंपैक्ट होती है, प्रोटीन जो है पैक होती है, उस पैकिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड रोल प्ले करती है। फिर सेकेंडरी के बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है, एंड दैट टर्शियरी स्ट्रक्चर फाइनली कन्फॉर्म्स इनटू अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है, और वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो फिर प्रोटीन को फाइनल शेप देता है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन डीएनए, लुक एट द स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। डीएनए बुनियादी तौर पर एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, विच इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एज यू नो दैट the particularly the biology students more know about the deoxyribonucleic acid। तो डीएनए के अंदर एक हेलिकल फॉर्म होती है, डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। डबल हेलिक्स में शुगर फास्फेट चेन्स होती हैं, और उनके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं, प्यूरीन्स और पैरामीडीन्स, ठीक है, वो आपस में आमने सामने होती हैं। मसलन एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद द थायमीन एंड साइटोसिन ऑलवेज पेयर्स विद द गुआनिन। अब एडेनिन और थायमीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जबकि साइटोसिन और गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो दो जो डीएनए की स्पाइरल चेन्स होती हैं, जो शुगर फास्फेट डबल हेलिक्स होती है, उनको स्टेबलाइज करना और उनके दरमियान यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग डीएनए को मेंटेन रखता है। डीएनए एक ऐसा रिमार्केबल मॉलिक्यूल है जो कि अगर आप उसे डिसरप्ट करें तो वो दोबारा रीअरेंज हो जाता है, डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है, ठीक है, डुप्लीकेट भी हो जाता है। एक मॉलिक्यूल ऐसा है जो अपने आप को मेंटेन करता है, इसकी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है। दैट स्टेबिलिटी मेक्स अ डीएनए अ रिमार्केबल मॉलिक्यूल, बिकॉज इस मॉलिक्यूल के अंदर
जेनेटिक कोड्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ बेस, ठीक है, जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं इसको बेस सीक्वेंस कहते हैं। तो बेस सीक्वेंस जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बना हुआ होता है। दैट बेस सीक्वेंस इज एक्चुअली कोड्स फॉर द प्रोटीन अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। वो बेस सीक्वेंस जो डीएनए का होता है वो अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को डिसाइड करता है, और अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है वो प्रोटीन की पर्टिकुलर फॉर्म को डिसाइड करता है। वो प्रोटीन की पर्टिकुलर फॉर्म हमारा जेनेटिक कैरेक्टर होता है, और वही प्रोटीन की पर्टिकुलर फॉर्म हमारे अंदर फंक्शन परफॉर्म करती है। अगर हम अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट चेंज कर दें डीएनए की चेंज की वजह से, तो प्रोटीन फेल्स टू कैरी इट्स फंक्शन। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास सिकल सेल एनीमिया है, जिसमें वेलिन और ग्लूटामिक एसिड अपनी प्लेस चेंज कर लेते हैं और पूरा रेड ब्लड सेल सिकल या दराती की तरह का हो जाता है, ठीक है, एंड दैट फेल्स टू कैरी द ऑक्सीजन कैरिंग फंक्शन। सो डीएनए के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है विच स्टेबलाइजेस द डीएनए टू एन एक्स्ट्रा एक्सटेंट, टू मच एक्सटेंट। तो डीएनए की वजह जो है वो ये होती है कि डीएनए की जो स्टेबिलिटी होती है दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन द प्यूरीन्स एंड पैरामेडिन बेसिस। बेस पेयर्स जो होते हैं डीएनए के अंदर, ठीक है, उनके अंदर आपने डॉटेड लाइन से ये देखी होगी, तो वो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होते हैं, ठीक है। तो वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दैट इंक्रीजेस द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द डीएनए एज वेल। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा दूसरे ग्रुप्स के साथ। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया अभी तक, ठीक है, उससे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, तो फ़ायदा ये होगा कि नई वीडियो आएगी तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। नहीं दबाएंगे तो फिर वीडियो आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।